শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 47 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 1.47 অনওয়ার্ডস। শিক্ষা গুরুকে তো জানি কৃষ্ণেরও স্বরূপ, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप, অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ। अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। ओके, सो दो चीज दिया है। हरे पहला, कृष्णा हरे कृष्णा। শিক্ষা গুরুকে তো জানি কৃষ্ণেরও স্বরূপ। তো শিক্ষা গুরুকে তো জানি একদম সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ। আর মানে যেমন শিল প্রভুপাদ ইজ অ্যাজ গুড এজ কৃষ্ণা, মিনস ইজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কৃষ্ণা। ওনার দেওয়া সব শিক্ষাই তো আমরা পড়াশোনা করছি। আর অন্তর্যামী আর কমা দেওয়া আছে। তো ভগবান দুই রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। এক অন্তর্যামী, অন্তর্যামী মানে পরমাত্মা রূপে। হ্যাঁ, পরমাত্মা রূপে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন। আর ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপে। শিক্ষাগুরুকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলে জানতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপ ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত রূপে প্রকাশ করেন। শ্রেষ্ঠ ভক্ত রূপ, এর মধ্যে বিশ্লেষণ আসবে আগে। তাৎপর্য শ্রী, আচ্ছা এটা একবার হিন্দিটা পড়ে নিন। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষাগুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি। শিক্ষাগুরু রূপে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শিক্ষা দেন। অন্তর থেকে তিনি আমাদের নিত্য সহচর পরমাত্মা রূপে শিক্ষা দেন এবং বাইরে শিক্ষাগুরু রূপে भागवत गीतार ज्ञान दान करें। ठीक है, देखिए शिक्षा गुरु रूप से भगवान भगवत गीता में हम लोग को बताया, अर्जुन को बताया, लेकिन हम लोग को ही बताया ना इनडायरेक्टली। और अंदर में परमात्मा रूप में हमेशा हम लोग को गाइड कर रहे हैं। दुई रकमेर शिक्षा गुरु रयेछेन। एक नम्बर मुक्त पुरुष, जिनि यथार्थभावे भगवानेर सेवाय मग्न, एवं दुई যিনি যথার্থ নির্দেশ প্রদান করার মাধ্যমে শিষ্যের হৃদয়ে কৃষ্ণ ভাবনা জাগরণ করেন। ওকে, দো প্রকার কা শিক্ষা গুরু। একজনকে যে মুক্ত পুরুষ, যিনি সর্বতভাবে ভগবানের সেবায় মগ্ন। এক্সাম্পল, বেস্ট এক্সাম্পল উড বি গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, যিনি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের গুরুদেব ছিলেন। তো তিনি একবার বাংলাদেশে ভ্রমণ করছিলেন জাহাজে। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন বাংলাদেশে যাচ্ছিলেন কোনো একটি মন্দিরের উদ্ঘাটন করার জন্য, তো ওই সময় এক ভক্ত ওনাকে মানে স্টিমারে এক ব্যক্তি ওনাকে বলেন যে আপনি তো সিংহগুরু, আপনি সব জায়গায় প্রচার করছেন, মঠ নির্মাণ করছেন, কত ভক্তদের আপনি দীক্ষা প্রদান করছেন, কিন্তু দেখুন আপনার গুরুদেব ছিল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, উনি সেই নবদ্বীপে এক কোনায় বসে নিজের ভজন নিয়েই ব্যস্ত, এইভাবে বলেন। তখন খুব ক্রুদ্ধ হয় এটা শুনে। ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ওনাকে উত্তর দেন যে এই যে জাহাজটা চলছে আপনারা দেখছেন, স্টিমারটা চলছে আপনি দেখছেন, কেন চলছে? কারণ কি স্টিমারের ভেতরে এক কোনায় একটি মোটর আছে, মোটরের মধ্যে ইঞ্জিন আছে, সেই ইঞ্জিনটা চলছে বলেই কিন্তু এই পুরো গাড়িটা স্টিমারটা চলছে, আর আমরা আপনার সবাই মিলে ওই পারে যেতে পারবো। ঠিক তেমনি আমার গুরুদেব উনি নবদ্বীপ ধামে ভগবানের তীব্র আরাধনা করছেন এক কোনায় বসে, আর ওনার সেই শক্তি সঞ্চার এর কৃপায় আমাদের এই গৌরীয় মিশন মুভমেন্ট চলছে।
এইভাবে উনি বলেন। তো এই প্রথম যে মুক্ত পুরুষ লেখা, এই দুই রকমের শিক্ষাগুরু। একজন মুক্ত পুরুষ প্রথম নম্বর, যিনি সর্বতভাবে ভগবানের সেবায় মগ্ন। আর 2 নম্বর, যিনি যথাযথ নির্দেশ প্রদান করার মাধ্যমে শিষ্যের হৃদয়ে কৃষ্ণ ভাবনা জাগরিত করেন। তো এই 2 নম্বর, जैसे आप है हरे कृष्णा, आप है हरे कृष्णा। একদম ভুল ধারণা, আমি ক্লিয়ার করব এটা। আমরা শিল প্রভুপাদের সব বাণী পড়াশোনা করছি, তো শিক্ষাগুরু আমাদের কিন্তু একদম ডাইরেক্ট শিল প্রভুপাদ। এই যে তাৎপর্য করে শোনাচ্ছি তার মানে না আমি হয়ে গেলাম, জাস্ট আই এম রিডিং দ্য থিং, বাট শিল প্রভুপাদ থেকে ডাইরেক্ট আমরা একদম শিক্ষা প্রাপ্ত করছি। এইভাবেই हम लोग को स्टीयरिंग तो आप पकड़ा है ना, हम लोग का स्टीयरिंग तो आप पकड़ा है। আপনার বঙ্কিম টাইম দেওয়া হবে পরে। হ্যাঁ संगिनी माता। हाँ प्रभु, मैं वही बात बोलना चाह रही थी कि जैसे तो शिल प्रभुपाद जी दे के गए हैं, तो अभी तो हम आपके थ्रू शिक्षा ले रहे हैं, तो हम लोग अच्छा ठीक है, मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा, समय तो कम है, सुन लीजिए, पहले पढ़ लेते एक बार। এইভাবেই ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে আধ্যাত্মগত ও বস্তুগত এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। हिंदी में क्या लिखा है इसका? वस्तुपरक और आत्मा परक। अरे पूरा सेंटेंस पढ़िए। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। অর্থাৎ তা চিন্ময় অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় চেতনা উভয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। ओके, तो भगवत तत्व कैसे? चिन्मय अनुभूति, एक्सपीरियंस, यू फील, एंड इंद्रिय चेतनार उभयर माध्यमे उपलब्धि करा जाए। एक तो श्रवण करके ऐसे चिन्मय अनुभूति, और दूसरा इंद्रिय समूहेर माध्यमे माने सेवा करके। যথার্থ আচার্য বলতে তাকেই বোঝায় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন এবং শিষ্যকে পূর্ণ জ্ঞান দান করে ভগবত সেবায় যুক্ত করেন। হ্যাঁ, কারণ কি যুক্ত না হলে, সেবায় যদি যুক্ত না হয় তাহলে ইন্দ্রিয় চেতনা উভয়ের কিভাবে উপলব্ধি করবেন? only when the disciple is engaged in the spiritual service he will experience his senses will experience. So though first gyan and at the same time seva, both should happen simultaneously. আমি আবার পড়ছি এটা। অর্থাৎ তা চিন্ময় অনুভূতি ও ইন্দ্র চেতনা উভয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। যথার্থ আচার্য বলতে তাকেই বোঝায় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন এবং শিষ্যকে পূর্ণ জ্ঞান দান করে, দেখি নাম্বার 1, পূর্ণ জ্ঞান দান করে ভগবত সেবায় যুক্ত করেন। বোথ আর ইম্পর্টেন্ট। কেউ যখন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে যথার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু সেবায় নিযুক্ত হন, তখন ব্যবহারিকভাবে তার भगवत भक्ति शुरू है। जी हाथ उठाइए। बोलिए। प्रभु, दोनों गुरुओं के बारे में विस्तार से हिंदी में थोड़ा बोलिए ना। दोनों गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, माने एक ही व्यक्ति के लिए। यहाँ तो माने गुरु, शिक्षा गुरु बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, हाउ एक तो ज्ञान प्रदान करता है, एट द सेम टाइम शिष्य को सेवा में भी नियुक्त करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। भगवत भक्ति এই পন্থাকে বলা হয় অভিধেয়। अच्छा, और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि सेवा माने टेंपल से सेवा जुड़ना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माई पॉइंट इज सेवा में नियुक्त करते माने सिर्फ ऐसा नहीं कि कृष्ण तत्व देता है, उनको जप करने बोलता है, 4 नियम का पालन करने बोलता है, ये भी सेवा है। उनको बोलता है कि आज से आप चेष्टा कीजिएगा प्रसाद सेवा करने के लिए, जो भी आप भोजन कीजिएगा उसको ठाकुर जी को अर्पण करके इसको सेवा करिए, वो भी सेवा है। आप 4 नियमों का पालन कीजिए और चेष्टा कीजिए शास्त्र अध्ययन करने। और हाँ, जब मंदिर जाते तो मंदिर में भी कुछ सेवा कर लेने का, तो ऐसे करके सेवा में एंगेज करना है। भगवत भक्ति पंथा के बोला है अभिधेय। अभिधेय माने प्रोसेस। सो संबंध जोड़ना है और प्रोसेस माने उनको
अलग अलग साधना के अलग अलग चीजों से उनको लिंक कराना है। অর্থাৎ কর্তব্য স্বরূপ যে কার্য সম্পাদিত হয়। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको ये क्या बोलते हैं, उसको 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री समझ रहे हैं, पूरा चारों ओर से व्यक्ति का परिवर्तन लाता है। इट्स नॉट दैट सिर्फ क्लास करके हो गया खत्म बात, नहीं। व्यक्ति को धाम दर्शन कराना पड़ेगा, व्यक्ति को भगवान के अलग अलग फेस्टिवल में जुड़ाना पड़ेगा, फेस्टिवल्स का अनुभूति कराना पड़ेगा, और फिर व्यक्ति को भगवान के अलग अलग सेवाओं से नियुक्त करना पड़ेगा। ये पूरा हर एक लाइफ में, हर एक एस्पेक्ट में व्यक्ति का कृष्ण से संपर्कित होना चाहिए, एवरी एस्पेक्ट। तो खाना पीना, उठना बैठना, किन से वो बातचीत करेगा, किनके साथ घूमने जाएगा, एवरीथिंग शुड बी कृष्णाइज्ड, बट इट हैपेंस इन स्टेप बाय स्टेप प्रसेस। আমাদের একমাত্র আশ্রয় হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং যিনি আমাদের শিক্ষা দেন কিভাবে সেই ভগবানের সমীপবর্তী মানে নিকটে যাওয়া যায়, সেটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের মূর্তি প্রকাশ শ্রী গুরুদেব। আশ্রয়দাতা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর কোনো রকম পার্থক্য নেই। কেউ যদি মূর্খের মতো তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেন, তাহলে তা ভগবত ভক্তি মার্গের অপরাধজনক। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুকে যদি পার্থক্য নিরূপণ করেন, দ্যাট ইজ নট রাইট, বোথ আর ইম্পর্টেন্ট। শ্রীল সনাতন গোস্বামী হচ্ছেন আদর্শ গুরু, কেননা তিনি বদ্ধজীবকে মদন মোহনজির শ্রী পাদ পদ্মে আশ্রয় দান করেন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ওই জন্য সম্বন্ধ আচার্য হচ্ছেন শ্রীল সনাতন গোস্বাमी। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग का भी कोई ना कोई संबंध गुरु रह चुका होगा ना, किसी ना किसी ने व्यक्ति हम लोग को ये कृष्ण भक्ति मार्ग में लाया होगा। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে ফলে কেউ হয়তো বৃন্দাবনের যথার্থ রূপ দর্শন করতে অসমর্থ হতে পারে, কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপায় সে বৃন্দাবনে বসবাস করে প্রভূত স্বীকৃতি অর্জন করার সুযোগ লাভ করতে পারে। অর্জুনকে ভাগবত গীতার শিক্ষা দান করে শ্রী গোবিন্দজি ঠিক শিক্ষাগুরুর মতো আচরণ করেছেন। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या क्या, संबंध गुरु मदन मोहन के साथ संपर्क कर दिया श्री सनातन गोस्वामी। अभी नेक्स्ट क्या, अभिदय। अभिदय माने प्रोसेस। एक बार आप अगर संबंध से जुड़ गया, नेक्स्ट क्या बोलिए, हम लोग भी जुड़ गया इस कौन से। उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे भजन किया जाता है, कैसे डेली जप करना है, प्रसाद खाना है, कैसे भगवान का बारे में श्रवण करना है, कैसे यात्रा में जाना, वो किस में आ जाएगा, ओभिदेव। ओभिदेव माने प्रोसेस। ओभिदेव का कौन सा प्रतीक है, भगवान राधा गोविंद जी। ओभिदेव गुरु कौन है, रूप गोस्वामी। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, पूरा ऑल दिस थ्री एस्पेक्ट्स, संबंध, अभिदेव एंड बाद में प्रयोजन। অর্জুনকে ভগবত গীতা শিক্ষা দান করে শ্রী গোবিন্দজি ঠিক শিক্ষাগুরুর মতো আচরণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন আদি গুরু, কেননা তিনি আমাদের শিক্ষা দেন এবং তাকে সেবার করার সুযোগ দেন। सचमुच एकदम 100%। हम लोग का कलकत्ता मंदिर एकदम भगवान गोविंद जी हम लोग को सेवा करने का कितना सुযোগ दिया है ना। दीक्षा गुरु হচ্ছেন শ্রী মদন মোহন বিগ্রহের মতো প্রকাশ, तार शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव विग्रह मूर्ति प्रकाश। हरि बोल, समझ में आया। तो दीक्षा गुरु হচ্ছে মদন মোহন বিগ্রহের প্রকাশ। কেন, কারণ কি এই গুরু परंपराর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দিল दीक्षा गुरु। दीक्षा दिए लाइन में ला दिया आपको, समझ में। और लाइन में लाने के बाद शिक्षा गुरु क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करके आपको लाइन में टिका रखेगा। दीक्षा गुरु হচ্ছে শ্রী মদন মোহন বিগ্রহের মূর্তি প্রকাশ, আর শিক্ষা গুরু শ্রী গোবিন্দ দেব বিগ্রহের মূর্ত প্রকাশ। এই দুইটি বিগ্রহ আজও
বৃন্দাবনে পূজিত হচ্ছে। অফকোর্স অরিজিনাল বিগ্রহ তো চলা গিয়া রাজস্থান, মানে রিপ্লেসমেন্ট বিগ্রহ হ্যাঁ। শ্রী গোপীনাথ জি হচ্ছেন পারমার্থিক উপলব্ধির চরম আকর্ষণ। গোपीनाथ माने संबंध विधेय प्रयोजन, प्रयोजन माने डेस्टिनेशन, एकदम हम लोग का लक्ष्य टारगेट। श्री गोपीनाथ जी হচ্ছেন পারমার্থিক উপলব্ধির চরম আকর্ষণ। আর এই प्रयोजन तत्व में प्रयोजन आचार्य कौन है? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, अभी मैं एक एक करके भक्त लोग से पूछूंगा। संबंध विग्रह कौन है, संबंध का अर्थ क्या है, और संबंध में कौन गुरु है, और संबंध का आचार्य कौन है। ठीक है, चलिए आप ही से शुरू करते हैं। बोलिए पहले करुणा राधे माता जी, क्या प्रश्न है? अच्छा भूल जाएंगे, प्रश्न सुनने से अभी ये पूरा टॉपिक डाइल्यूट हो जाएगा। प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है। अभिधेय के एक सेकंड दिस फ्लो। यस, कोई बोलिए। ब्रज किशोरी माता जी, संबंध को बोलिए, संबंध के बारे में। संबंध का कौन विग्रह है? राधा गोविंद, राधा मदन मोहन। राधा मदन कौन संबंध आचार्य है? हम लोग के गुरु सनातन गोस्वामी। और कौन सा गुरु संबंध से जुड़ा हुआ है? शिक्षा गुरु, जो दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु दीक्षा देकर संबंध से जोड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पंकज प्रभु, अभिधेय। अभिधेय का विग्रह कौन है? अभिधेय विग्रह गोविंद जी हैं। अभिधेय का कौन सा गुरु है? अभिधेय के गुरु हैं ये श्री रूप गोस्वामी। नहीं, आचार्य ने पूछा, गुरु कौन है? अच्छा, शिक्षा गुरु। हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस को ये बताते हैं ना। एब्सोल्युटली। और आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। क्यों? अच्छा, क्योंकि रूप गोस्वामी क्यों है? महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया? उन्होंने जो जो बुक्स लिखा, देखिए बुक्स लिखा तो बुक्स तो उन्होंने भी लिखा था ना। तो महाप्रभु ने उनको जो जो बुक्स लिखने का आदेश दिया और जो जो लिखा, मैक्सिमम बुक्स अभिधेय तत्व का ही ऊपर है। हाउ टू, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगर देखिए आप भक्ति रसामृत सिंधु देखिए, उसके भक्ति का 64 अंग दिया हुआ है, 32 डूज 32 डोंट्स। सो अभिधेय तत्व के ऊपर ही उन्होंने मैक्सिमम ग्रंथ लिखा है। ओके, नेक्स्ट गायत्री राधिका माता जी, अनम्यूट करिए, नहीं तो मैं सुनूंगा कैसे। करिए अनम्यूट। ओके, कि माँ बोलो। गोपीनाथ जी की, गोपीनाथ जी की परमात्मा उपलब्धिर चरम प्रकाश। হ্যাঁ, তো উনি কি সম্বন্ধ অভিধেয় না প্রয়োজন বিগ্রহ? প্রয়োজন বিগ্রহ। প্রয়োজন বিগ্রহ। আর প্রয়োজন আচার্যকে? প্রয়োজন আচার্য কে? প্রয়োজন আচার্য হচ্ছে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। यस, सुमन करेंगे माता जी। प्रभु जी, जैसे इनके ये संबंध के दीक्षा गुरु और अभिधेय के शिक्षा गुरु ना, और इनके क्या है प्रयोजन के? प्रयोजन के क्या, और गुरु, और क्या गुरु चाहिए? संबंध हो गया, प्रोसेस सीख लिया, हाँ, वो तो चलते रहेगा। और क्या हो तो प्रयोजन में, डेस्टिनेशन में क्या, ये तो दो ही तो चलते रहेगा। अब लाइन पे आ गया, ट्रेन चलते रहेगा। लाइन पे कौन लाया? संबंध गुरु। सोचिए कोई ट्रेन है, ठीक है, आप ट्रेन बना कहाँ है? ट्रेन सोचिए कारशेड फैक्ट्री में ट्रेन बना, ठीक है, माधव स्वरूप प्रभु। अभी ट्रेन को पटरी में कौन लाया? दीक्षा गुरु। और ट्रेन को पटरी में लाया, फिर ट्रेन चलने लगा। वो कौन चला रहा है? किनका धक्का देके चला रहा है? वो है शिक्षा गुरु। ठीक है, और ट्रेन आस्ते आस्ते दिल्ली पहुंच जाएगा, बस ऐसे कुछ। प्रभु जी, तो गुरु महाराज जैसे हम लोग का संबंध और
प्रभुपाद हम लोग के शिक्षा गुरु एक और सेकंड, जैसे एक आप सेकंड, ये गड़बड़ करते हैं अभी। अभी आप इस्कॉन का स्ट्रक्चर में इसको फैलने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप ये तो कर रहे हैं ना? देखिए, हाँ या ना बोलिए थोड़ा प्लीज। प्रभु वही सोच रहे हैं। मैं इसीलिए कल बोला था ना, ये शास्त्र में दिया हुआ है। डोंट ट्राई टू इसको अभी इस्कॉन में इसको ये चीज को, इस साँचे समझते हैं आप? ये डाइस को आप इस्कॉन में फेंकने का अभी देखिएगा कि इसमें मैचिंग हो रहा है। इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। इट हैज, हाँ, तो इस्कॉन में शिक्षा गुरु आगे आ जाते हैं दीक्षा गुरु के आगे। हाँ या ना? हाँ या ना बताइए। दीक्षा होता है, दीक्षा मिलने के आगे बहुत पापड़ पलना पड़ता है लोगों को। तो इसलिए इसको एज इट इज मत कंपेयर कीजिए। संगनी प्रिया माता जी। हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन था सर, यही कि पहले दीक्षा करुणा राधे माता जी बोलिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये जो कौन दीक्षा गुरु है। ओके, हाँ जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये संबंध के लिए सनातन गोस्वामी को ही क्यों, मतलब व्हाई इज ही कॉल्ड दीक्षा गुरु? थोड़ा सा देखिए, मैं तो प्रवचन में ये सुना था कि संबंध ये सनातन गोस्वामी, मेरे गुरु महाराज जी प्रवचन में आता है, देते हैं कि ये ब्रजवासी के साथ सबसे ज्यादा संबंधित थे सनातन गोस्वामी। वॉज मोस्ट रिलेटेड। प्रसंग में आता है कि ब्रजवासी लोग क्या कर रहे हैं, मैंने सबसे बातचीत, ही वॉज वेरी मच रिलेटेड संबंध आचार्य। एंड इनफैक्ट ये जब जीव गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी ने तिरस्कार किया था, क्योंकि उन्होंने वल्लभाचार्य का टीका को, मैंने उन्हीं का टीका को वल्लभाचार्य ने थोड़ा कमेंट्री किया था, उनको ठीक करने किया था, और बाद में एक दिग्विजय पंडित भी आया था, उनको भी पराजित कर दिया। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बहुत क्रोधित करके बोला, तुम वृंदावन में रहने का योग्य नहीं, निकल जाओ यहां से। तो प्रसंग में आता है कि जीव गोस्वामी चला गया था, वो गुफा में, क्रोकोडाइल गुफा में घुस गया था। वो क्रोकोडाइल गुफा अभी भी है बाय द वे, वहां चला गया तो वहां रहते थे, और सब ब्रजवासी लोग उनको, तो ब्रजवासी लोग ही ने सनातन गोस्वामी को बोला, अरे तुम्हारा भातुष पुत्र अनुपम का पुत्र इधर गुफा में है, क्योंकि सनातन गोस्वामी वॉज वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद द ब्रजवासीज। प्लस सनातन गोस्वामी का जो बुक्स है, जैसे हरि भक्ति विलास, ये सब भगवान माने भक्ति मार्ग में आने का एकदम प्राथमिक बोई, माने कृष्ण भक्ति से संबंध जोड़ने के लिए एकदम बेसिक एलिमेंट्री बुक्स। हरि भक्ति विलास कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या क्या चीज करता है, डिटेल में दिया हुआ। प्रभु जी, हरि भक्ति विलास में भी प्रोसेस ही है ना? वही मेरा प्रश्न था यहाँ पे। हरि भक्ति विलास, देखिए, दैट इज नॉट प्रोसेस, मींस नो, देखिए तो बेसिक जो चीज है वो तो संबंध है, प्रोसेस इज सर्विंग द लॉर्ड। हरि भक्ति विलास इज मोर टू डू विद पर्सनल एप्लीकेशंस, so that is more like establishing relation with Krishna consciousness, संबंध स्थापन करने का जैसा है मोर। वो बुक भी हम लोग करेंगे, हरि भक्ति विलास भी ड्यू है हम लोगों का, वो भी करना चाहिए। प्रोसेस इज मोर लाइक भक्ति रसामृत सिंधु, 64 अंग दिया हुआ है भक्ति का। प्रोसेस इज मोर लाइक, क्या बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, वो दैट इज मोर लाइक अ प्रोसेस। हरि भक्ति विलास की प्रोसेस है, एकादशी करना, भोजन, जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं तो बिना मंत्र बोले, मोर लाइक एस्टैब्लिशिंग भगवान का एकादशी करना, ये मोर लाइक एस्टैब्लिश बेसिक क्या बोले इसको, माने ये तो करना ही, माने इट्स लाइक भगवान से संबंध जोड़ने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। भोजन खाने के पहले मंत्र करना, नहीं तो बस उसी तो दीज आर द बेसिक जो है क्राइटेरिया, वो तो संबंध जोड़ने के लिए है कृष्ण तत्व से। प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन समझ, भोग लगा के खाना, ये सब तो संबंध में ही है, ये तो हाँ, वो तो एस्टैब्लिश ही नहीं होगा नहीं तो। ओके, आगे श्री सनातन गोस्वामी হচ্ছেন आदर्श गुरु, কেননা তিনি বদ্ধ জীবদের मदन मोहन जी श्री पादपद्म में आश्रय दान कर। ये हो गया क्या श्लोक पूरा खत्म? हाँ, अगला श्लोक 48, टाइम है बहुत है, 1 मिनट में देखता हूं एक बार वो इसमें संबंध
अभी मेरा एक आप लोग से प्रश्न है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो झेलना, वो करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, नहीं तो वो छूट जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई ठाकुर जी का दर्शन करता है, जैसे 3 ठाकुर में जाते हैं हम लोग, 3 ठाकुर जाते हैं ना माघी पूर्णिमा में, तो हाँ हाँ, तो पहले हम लोग राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, कहते हैं उनका चरण दर्शन करना चाहिए, और फिर राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं खरदा में, उनका वक्षस्थल, कमर, वक्षस्थल, चेस्ट माने मिडिल पोर्शन दर्शन करना चाहिए। कोई बोलता है वक्षस्थल, कोई बोलता है नाभि, वो भगवान से मैचिंग है। और फिर लास्ट में हम लोग साईबोन में जाते हैं, राधा नंद दुलाल जी का दर्शन करते हैं, उनका मुखमंडल भगवान के जैसा है। तो ऐसे ही कुछ 3 ठाकुर राजस्थान में भी है, करेक्ट है ना? तो उसमें सीक्वेंस क्या है, पहले हम लोग करौली जाते हैं, जयपुर से लगभग 1.5-2 घंटा। महामंजरी माता जी है? हाँ करौली गए थे, सीक्वेंस में किया था या सीक्वेंस तोड़ के किया था? सीक्वेंस तोड़ के प्रभु जी, सीक्वेंस तोड़ के ही हुआ, क्योंकि दूर वाला तो सबसे सुबह पहुंचना पड़ता है। तो पहले करौली जाना पड़ता है, उधर राधा मदन मोहन जी है, ये ओरिजिनल विग्रह है वृंदावन का। सनातन गोस्वामी का विग्रह करौली में है, और वहां करौली में राधा मदन मोहन का चरण दर्शन किया। पूरा ही दर्शन करेंगे, लेकिन चरण माने, और उत्तरा जो है ना, वो बताए थे ना, भगवान का मैचिंग है, चरण एकदम राधा मदन मोहन विग्रह का जैसा ही है। इसके बाद किनका दर्शन कोई बता पाएगा? जयपुर में गोविंद देव जी। करेक्ट, रॉन्ग। गोपीनाथ। हाँ, इसके बाद गोपीनाथ। यही लोग गड़बड़ कर देता है, क्योंकि गोपीनाथ का नाभि भगवान जैसा है, गोविंद का नहीं। गोविंद का मुखमंडल भगवान जैसा है। हरि हरि बोल। प्रभु जी, गोविंद देव तो अभिदय है ना, लेकिन उनका चेहरा भगवान जैसा है, क्या करेंगे, अभी ऐसे ही है। प्रभु गोपीनाथ को वक्ष स्थल है ना? हमको मालूम था यहाँ लोग गड़बड़ करेगा, संबंध अभिदय प्रयोजन सोचकर, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है। क्यों मत बोलिए, वो तो भगवान को दर्शन करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। मुझे ये गोपीनाथ तो वक्ष स्थल है ना? हाँ, क्या? गोपीनाथ तो वक्ष स्थल है ना? हाँ, और मुखमंडल गोविंद का। तो ये 3-4 कितना कोर्से सी संगनी श्याम प्रेम माता जी। हाँ, तो हरे कृष्णा। तो जब इस्कॉन से हम जुड़े थे, तो जयपुर गए थे, तो वहाँ पे गोविंद जी का मंदिर गए थे। तो फिर हम देखे कि सब माता जी लोग बैठ के तुलसी जी का माला बना रही थी, पर गाना गा रही थी, भजन कर रही थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो फिर वहाँ पे गोविंद जी को हम देखते हुए भगवान से ही प्रे थे, भगवान हमको ऐसा मौका कब मिलेगा? गोविंद जी मिलेगा। आपको अगर गोविंद जी का माहौल चाहिए तो आप ऑनलाइन में सुबह जुड़िए, देखिएगा एकदम हम लोग का जो सुबह ऑनलाइन है ना क्लास, एकदम राधा गोविंद जी मंदिर जैसा ही है। ठीक फोटो उठाने का आके सब लोग आ जाता है, जैसे गोविंद जी मंदिर में सब पट खोलने का आगे सब आ जाता है, हम लोग का यहाँ भी वैसे ही कुछ है। यस, बोलिए निर्मला नंबरी माता। हाँ प्रभु, पहले तो इसी पे बोलूंगी। अनम्यूट करके बोलिए। 22 अरे अनम्यूट करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ओ सॉरी। पहले तो ये हमें हर ग्रेस लीला बिहारी माता जी क्लास में बता दिए थे, जो आप अभी सीक्वेंस पूछे थे ना, मदन मोहन जी और ये सब बताए थे माता जी अच्छे से। और दूसरा ये आप एकदम सही बोले, आज मैं यही देख रही थी, फोटो जब उठाना होता है सब आ जाते हैं, और जैसे ही फोटो का टाइम ऑफ होता है सब गायब हो जाते हैं, वही सब 10-12 लोग जो बचते हैं वही बचते हैं। हाँ, तो सेवा का भी बात रहता है ना प्रभु, घर में भी तो सेवा करना रहता है ना, तो उसको भी मैनेज तो करना होगा। तो कौन मना किया? मैंने मना किया, मैं तो जो ओके। यस, गायत्री माता जी। प्रभु जी, भगवान दर्शन का प्रोसेस एक बताइए, भगवान को जो दर्शन करता है उसका प्रोसेस थोड़ा बताइए ना प्लीज। प्रभु जी, भगवान का दर्शन का प्रोसेस। अच्छा, यस गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जब जयपुर गए थे तो आगे गोविंद जी का दर्शन थे, तब गोपीनाथ का, तब करौली गए। अच्छा,
तो इसीलिए भगवान को कभी भी मूर्ति हम लोग दर्शन करते हैं, विग्रह, मूर्ति बोलना नहीं चाहिए, भगवान का विग्रह दर्शन करते हैं, अच्छा विग्रह दर्शन करते तो पहले चरण, फिर नाभि वक्षस्थल, फिर मुखमंडल, ऐसे दर्शन करना चाहिए नीचे से ऊपर। ठाकुर जी का कभी भी आपको अभिषेक कर रहे हैं तो सोचिए आपको अभिषेक का कलश दिया तो पहले चरणों में दीजिए, फिर आस्ते आस्ते नाभि वक्षस्थल, फिर मुखमंडल, फिर ऊपर सर पे उनको वो जो भी है, दूध है, दही है, जो भी है उसको डालिए नीचे से ऊपर। हम लोग का तो पूरा उल्टा हो गया फिर, गोविंद देव जी गोपीनाथ और फिर करौली में मदन मोहन, उल्टा हो गया पूरा। आप जैसे दर्शन किया था। अच्छा, तो हम लोग का भी उल्टा ही हुआ, पहले मुखमंडल हुआ, फिर नाभि हुआ और फिर चरण हुआ, लेकिन एक दिन के अंदर में तीनों हो। अच्छा, तो ये तीन ठाकुर दर्शन का क्या महत्व है कि जो उत्तरा, जो अभिमन्यु का स्त्री ना उत्तरा, तो उन्होंने बताया था कि ये तीन विग्रह को देखकर, ये तीन विग्रह वज्रनाभ ने बनाया था। मैंने हम ओरिजिनल विग्रह मैंने जयपुर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वृंदावन में था, तो वज्रनाभ ने स्थापन किया था। मंदिर भी वज्रनाभ ने ही निर्माण किया था ओरिजिनल, जो भगवान के पौत्र थे। हाँ, पौत्र या परपौत्र, अच्छा जो भी परपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन। तो ये अभिमन्यु का स्त्री बताया था कि भगवान का ये मैचिंग है, साक्षात भगवान जैसे ही विग्रह को देख करके, ठीक है। और ये जो तीन ठाकुर है जो हम लोग का कलकत्ता में है, ये तीन ठाकुर विग्रह को कौन बनाया था? ये तीन ठाकुर विग्रह को नित्यानंद बाबू का बेटा, पुत्र, नित्यानंद प्रभु का पुत्र वीरभद्र गोसाई, हाँ, उन्होंने ये सब बनाया था तीन ठाकुर, हाँ, विग्रह। और वो ये कौन सा पत्थर से बनाया था? ये वही पत्थर से बनाया था जिस पत्थर में कंस ने देवकी और वसुदेव का 6 पुत्र को पटक के मारा था। तो वही पत्थर नवाब के घर पे था, दरवाजे के ऊपर। अच्छा, अभी छोड़िए, अभी बहुत स्टोरी है कि कैसे उसको मिलता है, नवाब का स्त्री बीमार पड़ जाता है, फिर ये जाता है ठीक कर देता है, फिर वो सब स्टोरी सुना होगा आगे आप लोग। ओके, अगला श्लोक करते हैं। বুঝি একটা লিখতে পারিনি, একটা হচ্ছে মুখমণ্ডল নাভি, আরেকটা বলো তিনজনের, একটা হচ্ছে রাধা গোবিন্দ হচ্ছে মুখমণ্ডল আর গোপীনাথ নাভি লিখেছি, আরেকটা কি নিচে থেকে উপরে যান, নিচে থেকে হচ্ছে মদন মোহন চরণ, गोपीनाथ जी नाभि और गोविंद जी मुखमंडल। परसों दिन मैं सुबह मंगल आरती करने गया था एल्बर्ट रोड में, मैंने आप लोग गए होंगे, सचमुच वो माहौल, मंगल आरती का माहौल और भगवान का दर्शन जब पट खुला, उफ, क्या बोले, इतना सुंदर लग रहा था। ओके, माताजी बजिस्टर कराचे क्या? माताजी बजिस्टर किनका है? वक्षस्थल किनका है? गोपीनाथ जी का। गोपीनाथ नाभि भी अभी बोले ना, हम नाभि है, वक्षस्थल नाभि है, वक्षस्थल नहीं, नाभि है। बजिस्टर किनको बोले? ओह, अभी बोला नहीं, अभी उसी को पकड़ के रखेंगे। ठीक है। कुछ व्यक्ति कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लिकेटेड हर एक एस्पेक्ट में ही रहता है। One who is complicated remains complicated in all aspects. बस ओवरऑल मिडिल पोर्शन समझ लेना चाहिए। मिडिल पोर्शन, हमको भी थोड़ा मिक्स हो रहा है, नाभि ना वक्षस्थल, हम भी मिक्स हो जा रहे हैं। नाभि है एक्चुअली, वक्षस्थल है। नाभि क्यों नाभि क्यों बोला मालूम है? क्योंकि हम लोग जो 4237 करते हैं ना, 4237 मालूम है ना, 4237 जब सोचे अगरबत्ती दिखाते हैं 4 बार चरणों में, 3 बार मुख में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुखमंडल, तो वो नाभि और ये चेस्ट, गोपीनाथ का चेस्ट, वक्षस्थल गोविंद भगवान जैसा है, उसी में मैं मिक्स हो जाता हूँ हमेशा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब हम लोग आरती करते हैं, इट इज नाभि। 4237 मालूम है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई सोच रहा है क्या बात? सब समझ में 4237 हाँ, 4237 हाँ।
राजीव प्रभु क्या लिख रहे हैं, थोड़ा पढ़ के सुनाए कोई। विग्रहों का संबंध। गोविंद देव जी जयपुर में स्थित इस विग्रह के मुखारविंद, चेहरे और आंखों के दर्शन किए जाते हैं। गोपीनाथ जी जयपुर के पुरानी बस्ती में विराजमान इस विग्रह के वक्षस्थल, छाती के दर्शन किए जाते हैं। हाँ, मैं ठीक ही बोला था, छाती। इनका छाती, लेकिन आरती के समय, एक सेकंड प्रभु, आरती के समय छाती में नहीं दिखाता है, आरती के समय नाभि में दिखाता है। समझ रहे आपने क्या बोल रहा हूँ? 4 2 नाभि में ही होता है, 3 मुखमंडल में और 7 पूरा। पर ये लास्ट क्या है? मदन मोहन जी। मदन मोहन जी करौली में विराजमान इस विग्रह के चरणारविंद, पैरों के दर्शन किए जाते हैं। एकदम ये लोग ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। नहीं, ठीक है, एक खाने को लो नहीं, और हाँ टाइम भी हो गया, ठीक है, ज्यादा हुआ नहीं आज, लेकिन बहुत दूसरा चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो आलोचना हुआ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন করিয়া সবে বল হরি হরি। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।